tin tin tak da din din da tin tin tak dina di dina tina di dina din tak dina tuna katta tak tak dina din din da din din tak tak dina katin tak tak dina tin tin tak da din din da tin tin tak dina di dina tina di dina din tak dina tuna katta tak tak. Assalamu alaikum, everyone. My name is Khurram Qureshi, and it gives me great pleasure. It's an honor to be here at the launch of the book of Reason, Romance, and Ruin, a conceptual history of the Pakistan ideology, by someone who doesn't need an introduction, but I'll do my best. Okay? He's a seasoned journalist. He has been a columnist for the last 20 years, historian, a rock critic, an author of 9 books now. So you know him, you love him, Mr. Nadeem Farooq Paracha. Please give it up for Nadeem. Nadeem, congratulations on the book. Thank you. It's a riveting read. Let's jump into it. The conceptual history of the Pakistan ideology. It's a heavyweight topic, right? And you chose to focus on the lives and works of 3 gentlemen, primarily. The spoiler alert, those gentlemen are Sir Sayyid, Allama Iqbal, and Maulana Maududi. You didn't focus so much on Muhammad Ali Jinnah, who's regarded as the father of the nation. Give us your thought process on this. First of all, since we don't much have much time here, अगर आप समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी है क्या चीज़, बिकॉज वो कई तरह सही तरह आर्टिकुलेट नहीं हुई, यू कैन फाइंड lots of traces about this so-called ideology and let's say what जो टेक्स्ट बुक्स में मिलता है आपको, जो हमें पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, जो पब्लिक स्कूल हो. तो जब आप पढ़ते हैं कि पाकिस्तान आइडियोलॉजी ये है, तो 3 लोगों का उसमें इन्फ्लुएंस नज़र आता है. अनफॉर्चुनेटली सर सैयद का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको बस एक इन पासिंग उनकी डिस्कशन हो जाती है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें सर सैयद की जो इग्नोर कर दी जाती हैं और शायद आज इस माहौल में बोली भी नहीं जा सके. बिल्कुल सही. तो 2 लोगों का सबसे ज़्यादा जो जिक्र होता है वो है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, एंड मौदूदी साहब का जिक्र उसमें नहीं है, लेकिन मौदूदी साहब का इन्फ्लुएंस आपको सबसे ज़्यादा नज़र आता है, जिसको हम पाकिस्तान आइडियोलॉजी कहते हैं. जहाँ पोस्ट 1971 के बाद जो पाकिस्तान नेशनलिज्म की जो 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 जिस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, वी कैन सी इट, चाहे वो इस्लामिक इकोनॉमी हो, इस्लामिक देश हो, इस्लामिक, तो मौदूदी साहब की बहुत से है. विदाउट इवन मेंशनिंग हिज नेम, वी टॉक अबाउट मौदूदी साहब ओवर एंड ओवर अगेन, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो सियासतदान हों. सो वो सब मौदूदी साहब की कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, आप उससे एग्री करें या ना करें. एंड इकबाल का तो कल डॉक्टर हुडबॉय के साथ भी हमारा एक सेशन था, तो हम यही डिस्कस करते, देयर वाज नॉट वन इकबाल. लेकिन एक इकबाल थे जो मैंने किताब में डिटेल में लिखा है कि उनको रैशनलिस्ट एनलाइटन कहा गया, जो अयूब खान के ज़माने में प्रेजेंट किए गए एज ए प्रोग्रेसिव भी नहीं, एज ए एनलाइटेंड मॉडर्न स्कॉलर. वही इकबाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब यह पाकिस्तान आइडियोलॉजी की डिबेट ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई, इस्टेब्लिश नहीं हुई, तो वही इकबाल फिर एक सोशलिस्ट इकबाल बन गए. जब पाकिस्तान आइडियोलॉजी ऑफिशियली लॉन्च हुई 78 के बाद, तो हमें इकबाल द इस्लामिक आइडियोलॉग नज़र आए. And that is the Iqbal we have been studying and been teaching our children. So these 3 people to me have influenced what we call the Pakistan ideology the most. That's why मैं इन तीनों पे डिटेल में इनको स्टडी किए, इनके वर्क्स को और इनके कैरेक्टर को. Fair enough. Let's start one by one, if we Yeah, can, sure. right? So if we talk about Sir Sayyid, if I say that Sir Sayyid was like a person trying to have a rational discussion with someone very emotional, would that be a fair summary of his struggles and what he went through? देखिए सर सैयद का डेफिनेटली ही wanted a rational mindset for Muslims to survive what happened after 1857 especially, जिसको गोरे म्यूटनी कहते हैं, इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, और हम भी इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं. Whatever it was an uprising against the East India Company, British East India Company, and it failed miserably. Thousands of people died, including the British women and children and Muslims and Hindus. So he said, "Yeah, this is not going to, especially talking to the Muslims and then to the Indians as a whole." He said, "We need to have rational discussions about
religion, about politics, about everything. So yes, he was trying to address certain emotional issues, emotional narratives which were going on those days in a more rational manner, and he was also very influenced by जिसको हम the enlightenment period कहते हैं यूरोप में, जहाँ reason, rationalism, empiricism पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, and religions were being demystified Right. and rationalized as well. So yes, he was उनको देखें 100 साल बाद, उनकी डेथ के 100 साल बाद बहुत आराम से यहाँ हम कह देते हैं कि यार वो तो चमचे थे गोरों के. But look at his situation, look at the situation of the Muslims in the 18th, in the 19th century. ना नौकरी उनके पास रही, वो अपने नॉस्टैल्जिया में पढ़ते रहे. यहाँ तक के इस तरह के लोग थे उस ज़माने में जो कहते थे कि अगर आपने अंग्रेज़ी बोली तो आपको 3-4 कुलियाँ कर लेनी चाहिए. मतलब इतनी वो है. तो he was up against this sort of a sentiment. And unfortunately, the way he started to interpret Islam, that became very controversial as well, because he said that the Quran is a very rational religion, and क्या कहते हैं, it is very compatible with science and etc. तो उनको बहुत मतलब उनके against तो एक फतवा भी जारी हो गया था by the Imam of Kaaba in those days. और यहाँ he faced a lot of problems, right. Because देखें ना बिल्कुल ही society change हो रही थी, इधर modernization आ रही थी, British ideas were it. So he was saying let's adopt these, but we don't have to compromise our overarching Muslim identity. But the thing is कि अब जो हम अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते हैं सर सैयद को, वो सिर्फ एक लंबी दाढ़ी वाला बंदा है जिसने अलीगढ़ में एक कॉलेज well, there are many medical colleges who are named after and that's him about it. Yeah. You cannot discuss Sir Syed Ahmed Khan's true work in these textbooks. ठीक है, because वो फिर आपकी जो so called Pakistan ideology है ना, उसके खिलाफ जानी शुरू हो जाएगी बात. बिल्कुल, because he didn't want the British. He wasn't a supporter of independence as such. Well, कहते हैं जी two nation theory उनसे निकली थी. He was just pissed off that जब Congress बनी, he said it's a Hindu organization because 90% of the people in Congress were Hindu and Hindus were in majority. इकबाल के साथ जैसे मैंने कहा कि मॉडिफाई किया गया उनको, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे इकबाल wasn't really a philosopher as such, but he was a fantastic poet. One can say he is also a thinker, and उनको मॉडिफाई किया गया till about from late 40s till the fall of Ayub Khan. As I said, इकबाल को हमारी टेक्स्ट बुक्स में दिखाया गया कि जी मॉडर्निस्ट थे, रैशनल थे. भुट्टो साहब की जो regime थी 70s में, इकबाल suddenly became the person who came up with the idea of Islamic socialism. और फिर ज़िया के ज़माने के बाद इकबाल एक Islamic scholar, Islamic ideologue बन गए. The thing with इकबाल is कि उनकी इतनी, देखिए पोइट्री होती है ना, प्रोज की बात ना करें, उनकी पोइट्री में बहुत जज्बाती पोइट्री भी थी और बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस भी आपको मिल जाती हैं. But you said in the book, you said in the book that Iqbal has been cherry-picked by everyone throughout our history to suit their political needs, to एक narrative को substantiate करने के लिए. So talk about that. The cherry picking and the difference between what we perceive Iqbal to be and who he actually was. देखिए मज़े की बात है, इकबाल was a hero of the left, was the hero of the modernists, right, till at least late 60s. लेकिन फिर बाद में हमने देखा जमात इस्लामी ने इकबाल को ओन कर लिया as a great Muslim Islamic thinker. About only a few years ago, वो TLP के कौन थे, Khadim Hussain Rizvi was quoting Iqbal. So Iqbal is very easy to cherry pick, especially his poetry. ठीक है, poetry को तो आप किसी तरह उठा सकते हैं. So इकबाल तो सबके इकबाल हो गए, लेकिन I think इकबाल को हम नहीं कह सकते कि वो ये थे, because इकबाल kept changing a lot. बिल्कुल. You can call it वो mutation उनकी नजर आती रही. ठीक है ना. I mean, he was in Khilafat, then he was out of Khilafat. He was for Kamal, then he was against Kamal. And most importantly, I mean, he said that he was an anti-colonialist, and yet he accepted the knighthood. So, knighthood. So a lot of things are happening because there, लोग भूल जाते हैं knighthood जो सबसे ज़्यादा westernized आपके थे founder Muhammad Ali Jinnah, he was never knighted. It was Iqbal
जो मुस्लिम उम्मा उसके बारे ही वॉज नाइटेड. ठीक है, तो इकबाल इज वेरी इजी टू चेरी पिक, एंड people who eventually ended up creating this so-called Islamic ideology found a lot which they can use from Iqbal's poetry, less prose but more poetry, to turn that poetry into some sort of a ideology. जिसको हम ideology कहते हैं. Whatever suits them. Whatever suits them. At that particular point बिल्कुल. in time. So Iqbal was all over the place. And another very prominent figure in history once said that U-turns are a sign of great leadership. So, you know, maybe he was getting it from that. But let's move on to, I mean, you name the chapter in your book, The Leviathan. The Leviathan. The yeah. Leviathan. And if I was to say that out of all these three gentlemen that you focused on, Sir Syed, Iqbal, and Maulana Maududi, like you just said a little while ago, that Maududi has probably had the biggest impact on the Pakistan ideology and how our lives are today. After 71. Yeah, after 71. So, can you talk about that? Yeah, because देखें the whole idea जब भुट्टो साहब के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी by this alliance which was led by the religious parties और Islamist parties. Religious parties का ये मतलब नहीं है कि दूसरी non-religious religion, they Islamist parties. तो वहाँ उन्होंने नारा मारा था निज़ाम मुस्तफ़ा, you know, Prophet's rule or Islamic State वगैरह. That was directly coming from Maududi Saab's thesis of what he called Hakumat-e-Ilahi, the Islamic State, led by a pious man, you know, which will Islamize society first before making these widespread. Because you see, like Marx also ये कहता है ना कि society has to be conditioned in a certain manner for the final revolution to take place. Maududi Saab learned a lot from the left in this respect, and he said that before actual Sharia is imposed from the top, the society needs to be thoroughly Islamized. That's why you see जब ज़िया-उल-हक ने अपने 1979 के हदूद ordinances और बाद में जो दूसरे इस्लाम के नाम पे जो उनकी और Darkonian laws थे, that was coming from Maududi Saab's thesis that first Islamize the society, Islamize its banking, economy, its culture. You know, it's all coming from Maududi Saab's thesis, which he started to develop in the 1940s, right? Hakumat-e-Ilahi. So that, और ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. लेकिन जो ज़िया-उल-हक की हुकूमत के बाद, जो डिक्टेटरशिप के बाद हुआ और हो रहा है, that is largely coming from the thesis written by or thought up by Maududi Saab. Fair enough. In this book and in your previous book, Imran Khan, The Myth of the Middle Class, excellent book, by the way, if you haven't read it. You write and you mention that, you know, the Islamist parties, they tend to win the culture wars. They tend to win the culture wars, but they don't find the same success electorally and politically. Do you think that, you know, I mean, in 2025, do you think that feel that that's going to continue into the future? देखिए, they don't get, ये बहुत कोट किया जाता है बात कि इस्लामिस्ट पार्टीज को वोट नहीं मिलता. मेरा उस पर यह है कि वो इसलिए नहीं मिलता कि जो आपकी सो कॉल्ड नॉन इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, जो सेक्युलर नहीं हैं, क्वाजी सेक्युलर हैं, कोई हैं जो नॉन इस्लामिस्ट हैं, इस्लामिस्ट पार्टीज़ का जो इलेक्टोरल एजेंडा होता है, जो नैरेटिव होता है, वो हमारी मेन स्ट्रीम नॉर्मल नॉन इस्लामिस्ट पार्टीज़ ने ले लिया है. अडॉप्ट. तो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI फॉर एग्जांपल, these three main parties, even overtly secular parties like ANP and to a certain extent MQM, वो चीज़ें उठा ली उन्होंने. And since they've got a better network, they've got larger following, तो फिर आपके पास इस्लामिस्ट पार्टीज़ को कुछ और कहने को मिलता नहीं है. और वो जब उनको कहने का और कुछ नहीं मिलता तो वो और रेडिकलाइज बातें करते हैं, एंड दैट डजंट रेजोनेट विद द पीपल. तो जिस चीज़ पे उनको वोट मिलना चाहिए वो चीज़ें तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश पार्टीज कह रही हैं. सो दैट्स व्हाई उनको वोट नहीं मिलता ज़्यादा. ठीक है ना, बिकॉज देन दे हैव टू बी मोर मिलिटेंट साउंडिंग. तो उसको तो वोट नहीं मिलना, तो शुक्र है अल्लाह का. If we take these three gentlemen that you've mentioned in the book, right, and we put them side by side. So you have Sir Syed talking about rationality. He's talking about, you know, how bring akal into, you know, the concept of akal into how you are as a Muslim. You move to the center, you have Iqbal. He's talking about ishq. He's also sort of influenced by the Enlightenment philosophers. So there is keeping pace with the technology and what's happening in the West.
Correct me wherever I'm wrong. Yes. Then you move to the right and you have Maulana Saab, who is talking nothing to do with the West, man. No, we don't want any of that. It's Asli Islam. It is unadulterated version. So if you merge all three of them, is that what Pakistan is today? देखिए, at least the so-called ideologies. That's why I've titled it "Of Reason, Romance and Ruin." Reason आपके सर सैयद हो बिल्कुल गए, सही। romance आपके इकबाल इकबाल हो हो गए, ruin unfortunately मौदूदी साहब. It is not a totally negative critique of मौदूदी साहब. It is that कि when you mix religion with politics, any religion with politics, और हिस्ट्री हमें यही बताती है कि वो ruin ही क्रिएट करता है, social ruin, political ruin. तो एटलीस्ट तुम्हारा जो सवाल है, इज दिस व्हाट पाकिस्तान इज? यस, एटलीस्ट इट्स आइडियोलॉजी इज दैट, बट इट्स, चाहे रीजन हो, चाहे रोमांस हो, रूइन इज ऑल चेरी पिक्ड. ठीक है ना? बिल्कुल सही। सर सैयद की कोई चेरी पिक चीज़ें उठा लेते हैं कि मैं मुसलमानों को पढ़ाऊंगा, मैं कॉलेज बना दूंगा वगैरह, वो कैम्ब्रिज की तरह वगैरह वगैरह, ये सिर्फ पढ़ाया जाता है. एक कभी नहीं पढ़ाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने द वे ही रोट कमेंट्रीज ऑन द कुरान, ठीक है ना, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल, वो कभी नहीं पढ़ाई जाती है. रोमांस आई से अल्लामा इकबाल, बिकॉज दैट इज़ वेयर ही एंडेड अप. ही थॉट दैट रैशनैलिटी जो है, अकल जो है, स्पेक्यूलेटिव थिंकिंग जो है, वो इंसान को दीन से दूर करती हैं. दैट इज़ वेयर अल्लामा इकबाल एक्चुअली लैंडेड, like Nietzsche or other romantic thinkers in Europe. So he said, नहीं, impulsiveness is good, intuition is good, ठीक है ना, वो उस एरिया में. यहाँ पे नितिन, यहाँ पे there is a, he wanted individualism कि खुद ही हो, but then there was also a collective goal जी, that you जी. had to. So there was this kind Exactly. of बंदा क्या है कि आप खुद ही की बात कर रहे हैं, you're talking about a radical interpretation of the individual or individuality or the ego. So what if everybody becomes that? Yeah. Where does that ego or individuality goes? तो इस तरह के contradictions हैं. But like I said, he was a poet. और स्पेशली जो रोमांटिक पोएट होता है, रोमांटिक का ये मतलब नहीं कि नजमा से मोहब्बत हो गई. बुरा नहीं है, but So he was romantic. तो they really don't want to think things through. And जो उनके आसपास कंडीशन हो गई थी, हिंदू इंडिया, मुस्लिम राइट्स वगैरह, so that he settled with by saying नहीं यार, उम्मा होनी चाहिए. बिकॉज जैसे के अजीज़ ने अपनी किताब में लिखा था कि ये जो उम्मा का कॉन्सेप्ट हमारे एरिया में उस वक्त ज़्यादा मुसलमानों में आया व्हेन दे रियलाइज दैट दे, जब मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हो गई, 1857 की जो मूवमेंट थी वो क्रश हो गई. दैट इज़ व्हेन द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया रियलाइज दैट दे आर अ माइनॉरिटी. ठीक है ना? And then they suddenly talked about Ummah because they wanted to be related to a larger group of Muslims. तो Ummah वाली बात शुरू हो गई, फिर खिलाफत की बात शुरू हो गई. So it was a realization coming out of some sort of an insecurity कि यार ये हिंदुओं पे हमने कब से राज किया हुआ है, अब तो जमहूरियत आ गई तो यही आ जाएंगे. ठीक है ना? और हुआ वैसे. तो basically yes, I would say that it was interesting to learn or see the development and evolution or mutation, whatever you say. ये पाकिस्तान आइडियोलॉजी है क्या? जज भी ये कह रहा होता है नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, मिलिट्री जनरल भी ये कह रहा होता है, सियासतदान भी ये कह रहा होता है, मौलवी साहब भी ये कह रहे होते हैं, लेकिन उससे अगर पूछें है क्या, कोई आपको कन्विंसिंग जवाब नहीं मिलेगा. But they all have their own answer. They have own answer. I mean, और जो टेक्स्ट बुक्स में मिलता है, it's full of contradictions. मैंने लिखा है ना कि अगर मैंने टेक्स्ट बुक की जब रिव्यू किया तो ये 6-7 पॉइंट निकल के आए कि ये है पाकिस्तान आइडियोलॉजी. आखिर में वो एक पॉइंट था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. इट डजंट मीन एनीथिंग. यू नो, मोहम्मद हनीफ ने सही कहा था कि अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? या सो इट डजंट मेक सेंस एंड वी ऑल नो दैट where that line come from. ठीक है, वो भूल गए थे. वो एक नारा लगा था पंजाब में 1946 के इलेक्शन में, कोई फैसलाबाद के सो कॉल्ड आपके पोइट थे, टीचर थे, उन्होंने नारा मारा तो उन्होंने यूज़ कर लिया, फिर इट वाज फॉरगॉटन अबाउट. एंड देन सडनली रिपेयर्स इन 1978 जब आपकी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान तैयार हो जाती है और जहालक आ जाते हैं और इस्लामाइजेशन की वजह से सडनली आप यू स्टार्ट लिसनिंग दिस नारा इन शेप ऑफ अ नेशनल सॉन्ग. मिली नगमे का मिली नगमा बन गया था.
तो ये है चीज़ें. सो इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस थिंग कॉल्ड पाकिस्तान आइडियोलॉजी केम अबाउट, और ये है क्या. तो इसकी एक्सप्लोरेशन बेसिकली. जबरदस्त. अब टेक्निकल सवाल है मेरा थोड़ा सा. आपने यू स्पीक अ लॉट अबाउट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मेटा मॉडर्निज्म इन द बुक. एंड correct me, you, according to where we are in the postmodern phase right now. I would say postmodern phase is now dying out. So We are about to enter what is being called now the metamodern. meta-modernism. What, how do we, what's going to happen? What यार needs to मॉडर्निज्म happen? के खिलाफ रिएक्शन आया कि यू कैन नॉट यूनिवर्सलाइज एवरीथिंग. हर कल्चर का अपना आइडिया होता है मोरालिटी का, हर कल्चर का अपना आइडिया होता है, अपने एथिक्स होते हैं. यू कैन नॉट से कि जो वेस्ट के लिए मॉरल्स हैं वो ज़रूरी नहीं हम भी अडॉप्ट कर लें. तो वो दैट वाज मॉडर्निज्म जो कह रही थी नहीं यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात करें, चाहे हम कल्चर की बात करें. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच लॉट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन, नो मैटर व्हाट देयर कलर, दे शेयर. पोस्ट मॉडर्निज्म रिबेल्ड अगेंस्ट दैट. जिससे नो लोकलाइज्ड होनी Right. चाहिए. अगर कोई अफ्रीकन ट्राइब कैनिबलिज्म करता है तो तो पोस्ट मॉडर्निज्म दैट वाज ओके. Yeah. ठीक है ना. इसका इस थॉट का भरपूर फायदा इवेंचुअली ये थॉट जो लेफ्ट से निकली थी और डिफीटेड लेफ्ट से निकली थी, इसका भरपूर फायदा उठाया आपके फार राइट इन यूरोप ने, आपके इस्लामिस्ट ने इधर. और मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि हमारी जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी 78-79 में बन के निकली, ऑफिशलाइज हुई, वो भी एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकिंग की अक्कासी है. बिल्कुल सही है. अब ये है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स इन द वेस्ट एटलीस्ट, postmodernism has died and failed as well. There's a new thing coming up called metamodernism, and it's very simplistic. It says that there are certain things like climate, for example, जिसमें we need collective action, we need universal को हमें context देना बिल्कुल होता सही है. है. तो ये वो मॉडर्निज्म से वहाँ से उठा रहे हैं. फिर पोस्ट मॉडर्निज्म की काफ़ी चीज़ें भी वो कहते हैं कि वी डोंट नीड टू डीमोनाइज देम, वी हैव. तो बेसिकली So it's a mergence, a fusion of the फ्यूजन two, है. right? सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. So you feel like we may be entering into the मे बी एटलीस्ट वेस्ट के अंदर जो है, इवन दो जो भी पॉपुलिज्म वगैरह हो रहा है, आई वुड से ये आखिरी झटके हैं ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म गॉन रॉन्ग. उसके बाद क्या होता है ये देखने वाला है. सही है. अभी हम अंदर थे, आपका सेशन देख रहे थे अबाउट पीका ऑर्डिनेंस जो आ गई है एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में बातचीत हुई. what in your opinion should the political elite and our establishment learn from the lives of these three men? यार आई डोंट नो, वो तो कहते हैं उन्होंने सब कुछ सीख लिया. ठीक है ना, सीख लिया और हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया. बट आई कीप सेइंग इम्प्लीमेंट किया, लेकिन बड़ी चेरी पे कोई इकबाल जहाँ उनका फ़ायदा इकबाल को कोट करने से हो रहा है वो चीज़ उठा ली. सर सैयद को जहाँ करना है कोट वहाँ से उठा लिया. मौदूदी साहब से सबसे ज़्यादा सीख है. बिकॉज आप याद रखें 71 के बाद till at least 1974-75, before Bhutto Saab's government fell, Maududi Saab's books and writings were being distributed among soldiers, officers, and high officers. That is why I'm saying why Maududi Saab played such a huge role. And उनका नाम ज़्यादा नहीं आता, but he's played the largest role in shaping what Pakistan was after 1971. तो वो तो कहते हैं हमने सीख लिया, और कहते हैं हमें तो वो चीज़ें सिर्फ जो हम अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों में से वो अप्लाई करते हैं, बाकी चीज़ें फजूल हैं. कभी वो नहीं पढ़ाएंगे कि हाउ सर सैयद एक्चुअली डाइसेक्टेड द कुरान एंड अंडरस्टूड द कुरान एज अ रैशनल बुक ऑफ मॉरल्स. कभी वो अल्लामा इकबाल की ये बात नहीं आपको बताएंगे कि वो एक एटलीस्ट टिल द 1920s ही वाज अ ग्रेट फैन ऑफ द फाउंडर ऑफ द अहमदिया सेक्ट. कभी वो चीज़ मौदूदी साहब के ये नहीं बताएंगे कि मौदूदी साहब हेटेड जिन्ना साहब एंड वाज एक्चुअली अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. तो ये चीज़ें साइड पे कर देंगे जो चीज़ की फ़ायदा है वो. You should call it now Pakistan in your book. You wrote, right? Yeah. मौदूदी साहब ने ही कहा था ना बोला था. पाकिस्तान. या It is. I mean, it is. But in Yeah. the end, I would say he has been the most influential scholar as far as post 1971 Pakistan is concerned. And even though he passed away in September 1979, I think. So, I mean, it's a, like I said, it's a riveting book. And as I was reading it, I was just
So I was putting it aside. I was thinking about, okay, this is happening today. This is happening today, and you can link it back to history and everything that's happened, especially these three men. It's fascinating, and that's it from me. Let's turn it to the audience if we can for any questions, if anyone has. वो एक हैं, I mesmerized them. इधर है, इधर है. नहीं आवाज़ नहीं सॉरी हेलो सर जी जी. सर जो मैंने आपकी राइटिंग्स स्पेशली जो आपका वीकली कॉलम आता है जितना मैंने आपको पढ़ा है उससे जो नतीजा अखज़ होता है वो ये कि आप ये कहते हैं कि देखें पाकिस्तान में एज सच कोई लिबरल क्लास नहीं है. आप एक लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं लाइफस्टाइल लिबरल्स. ठीक है. अब मेरा बड़ा मुख्तसर आपसे सवाल ये है कि प्राचा साहब ये बताइए कि अब अगर यहाँ एक लिबरल क्लास ही नहीं है, हम लाइफस्टाइल लिबरल्स हैं, तो डी रेडिकलाइजेशन का एजेंडा फिर कैसे कामयाब होगा? पहले तो आपने एक लिबरल क्लास क्रिएट करनी है ना. तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं हमेशा ये वेट करता हूँ कि आप इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन दें कि क्या किया जाना चाहिए. वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए मसला हमारी ट्रेजेडी यही रही है. मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसमें आंसर भी है. सोल्यूशन में भी नहीं है, इसका एक आंसर. 77 में जब भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही थी, खैर मेरी उम्र तो 10 साल भी नहीं होगी, लेकिन जिसके बारे में पढ़ा तो सिर्फ उसमें सो कॉल्ड रिएक्शनरी इस्लामिस्ट फोर्सेस नहीं थी. दे वर लीडिंग द मूवमेंट अगेंस्ट भुट्टो साहब, को वो कह रहे थे कि जी ये एथियस्ट है वगैरह. इवन दो सेकंड अमेंडमेंट आ चुका था, भुट्टो साहब ने सोचा तो उन्होंने बड़ा तीर मारा है और मौलवियों को ठंडा कर दिया. बट दे केम आउट, दे केप्ट कॉलिंग हिम नॉन इस्लामिक वगैरह. निज़ाम मुस्तफ़ा का उन्होंने नारा मारा. ये आगे आगे होते थे, कुरान शरीफ इनके हाथ में होता था, पीछे पीछे आपके लेफ्ट लिबरल वाले लोग होते थे जो भुट्टो साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. लाइफस्टाइल लिबरल भी थे और इवन एक्टिव लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस भी थे. वो माओ जे तुंग की किताब पीछे लगे हुए थे. ठीक है ना. मसला ये है कि एवरीबडी इज़ एन अपॉर्चुनिज्म. ठीक है, पॉलिटिक्स इज अबाउट अपॉर्चुनिज्म, लेकिन मसला ये है कि अभी भी आप देखें, आई एम श्योर देयर आर पॉलिटिकल लिबरल्स इन दिस कंट्री एज वेल, लेकिन मसला उनके साथ ये रहा है और उनकी हिस्ट्री ये रही है कि जब उनको ज़्यादा वॉइस नहीं मिलती, मीडिया में हो या पॉलिटिक्स में हो, तो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड गोइंग थ्रू द ग्राइंड टू गेट दैट रिकग्निशन, वो रिएक्शनरी फोर्सेस के कोट टेल्स किसको कहते हैं वो पकड़ लेते हैं. ठीक है ना. अब समझ नहीं आती कि बंदा अभी भी है कि काफ़ी, मैं देख रहा हूँ काफ़ी रिएक्शनरी फोर्सेस के पीछे लग जाते हैं. अभी यहाँ कराची में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो रहे थे, तो किसी ने उड़ा दिया कि ये धांधली हो गई. फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी यहाँ नहीं जीत सकती. तो मैंने भाई जमात इस्लामी भी कैसे जीती है ना. जमात इस्लामी भी जीती है बिकॉज एक ओपनिंग बन गई थी. इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि क्यों MQ ने बॉयकॉट किया था. सो देयर वाज ऑलवेज अ चांस. तो सबसे ज़्यादा शोर जो मचाया वो आपके सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स और लिबरल्स ने मचाया. ठीक है ना. और मैं उनको बात कर रहा हूँ जो आपको पॉलिटिकली लिबरल कहते हैं. उनकी हिस्ट्री ये रही है, या तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन, उनको इन द एंड टू गेट इनटू द पिक्चर उनको रिएक्शनरी नज़र आता है या राइट विंग ही नज़र आती है कि उनकी जगह गोद में बैठ जाओ. वही बंदा उनको लात मारता है. बिकॉज जो भुट्टो साहब को गिराने में शामिल थे उनको जेलें हुई, कोड़े पड़े, पूरी कम्युनिस्ट सो कॉल्ड पार्टीज लेफ्ट की और लिबरल पार्टी एक होती थी, उनका तबाह बर्बाद कर दिया. इवन ईरान में अगर आप देखें, ईरान रेवोल्यूशन 1979 का सिर्फ मौलवी आयतुल्लाह नहीं लाए थे, उसमें लेफ्ट एंड लिबरल फोर्सेस का असल काम उनका था. लेकिन जब वो एक पॉपुलर आयतुल्लाह के पीछे लग गए, बाय 81 आधे ज़्यादा लिबरल लेफ्ट फोर्सेस को एक्सिक्यूट कर दिया गया, उड़ा दिया गया. सो एक ये रीज़न है मेरे ख्याल में. सोल्यूशन यही है कि यार इंडिपेंडेंट रहें. ठीक है. गेट इनटू, मैं तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो छोटी मोटी पार्टीज चलाते हैं लेफ्ट की, उनको मैं कहता हूँ यार व्हाई आरंट यू जॉइनिंग लेट्स से मेन स्ट्रीम पार्टी. जाम साकी एक होते थे बहुत मशहूर लेफ्टिस्ट, जेल में ज़्यादा टाइम गुजारा, 1991 में आके पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली. तो वहाँ बड़े उनके कॉमरेड नाराज़ कि आपने रेवोल्यूशन छोड़ दी. मतलब यार मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ सियासत,
कुछ भी मैं नहीं कर सका लोगों के लिए। अब मैं मेन स्ट्रीम पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज के मुझे, मैं उनसे 100% अग्री करता हूँ, बट मुझे शायद एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि मेरी सोच लार्जर मेन स्ट्रीम ऑडियंस को सुनाई दे और मैं कुछ काम कर सकूँ। तो मेरे ख्याल में इसमें सोल्यूशन भी है। तो नहीं, देयर इज़ अ लिबरल क्लास, बाय लिबरल आई मीन जो पॉलिटिकल लिबरल डेमोक्रेसी को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिलीव करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों एंड पे है। लेकिन लाइफस्टाइल लिबरल्स आर द, उनको तो छोड़ दो, मेरे ख्याल में उनको सियासत के बारे में बात करनी नहीं चाहिए, स्पेशली लाइफस्टाइल लिबरल्स को और आपके सेलिब्रिटीज़ को। एक ज़माने में मैं इनकरेज करता था, ठीक है ना, बट दे शुड स्टिक टू व्हाट दे नो बेस्ट। तो Celebrities तो I completely agree with. अभी वो तो खैर, let's have इधर कर लें। Amit, do we have some time? एक सवाल और कर, एक सवाल और उधर से ले लें। यहाँ से ले लें, यहाँ पे किधर से लें? उधर से वो खड़े हुए हैं यार, वो खड़े हुए हैं। आ जाए पे, वो उसको दे दो। आप पे आते आते हैं आपका, आएंगे यार, रास्ते सर, से लेना है यार। आवाज़ आ रही है सर? जी जी। सर हम ये खेल खेलते रहते हैं, टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वगैरह वगैरह। एक्चुअली में इसे कहना चाहिए ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म आइडियोलॉजी, नॉट पाकिस्तान आइडियोलॉजी। वजह यह है कि ब्रिटिश ने हमारे को यहाँ पर एक ऐसा खत्ता चाहिए था जहाँ पे वो आज़ादी के बाद एक ऐसा खत्ता चाहिए था जहाँ पे वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा परसू कर सके, और पाकिस्तान के ज़रिए परसू कर रहा है। सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट, अफगान वॉर, प्रो अमेरिकन और किसी हद तक प्रो चाइनीज़ था, और अपने शेरों के ख़िलाफ़, ठीक है। तो उसके बाद ये अभी तक चल रहा है और ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। उसने बस हमारे को दानिश सरों को दे दिया कि बस ये 3 बंदे हम नाम आपको दे रहे हैं। सर, सईद अहमद खान, सवाल ये है है कि ये टू नेशन थ्योरी को क्या है, इट इज़ नॉट अ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, इट इज़ अ ब्रिटिश आइडियोलॉजी। 3 बंदे दे दिए, इकबाल ये और कायद-ए-आज़म, इनको पकड़ो, खेल खेलो और लोगों को इस तरह से कहते रहो। यार, दो नेशन थ्योरी तो मेरे ख्याल में 1971 में ख़त्म हो गई थी। नाउ वी शुड बी मूविंग टूवर्ड्स व्हाट डॉक्टर भुट्टो आल्सो सेड इज़ ए वन नेशन थ्योरी। लेकिन उस नेशन को हमें पहले समझना पड़ेगा, ये नेशन है क्या। ये एक डाइवर्स नेशन है, प्लूरिस्टिक नेशन है। उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, चाहे वो एथनिक डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, सेक्टेरियन डाइवर्सिटी हो। तो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स अ वन नेशन थ्योरी। लेट्स फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड इन 71। फॉरगेट अबाउट, आई मीन इससे कि बार बार उस चीज़ को लाने का कोई फ़ायदा नहीं। एवरीबडी नाउ नोज क्या हुआ 71 में। एवरीबडी, जो आपने बात की 47, 48 में क्या हुआ, किस तरह पाकिस्तान बना, उस पर बहुत गुफ्तगू हो गई। But what we need to look now towards is a one nation theory. पाकिस्तान क्यों है, उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब अब क्या है। अब हिंदू दुश्मन नहीं है, ठीक है ना, ये हमें समझने पड़ता है और ये आगे जाके बात समझी जाएगी। इसको कहाँ लेके जाना है जी। basically? जी नदीम, बेस्ड ऑन योर स्टडी एंड एनालिसिस और ये किताब, क्या आप ये इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आइडियोलॉजी होना ज़रूरी है फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट? यार देखें, अग्रीड, कोई किसी, मैंने तो देखा नहीं, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में होती थी आइडियोलॉजी, ईरान वगैरह में आइडियोलॉजी जो फार राइट या फार लेफ्ट की कंट्रीज़ हैं, इवन दो आई वोंट कॉल सोवियत यूनियन फार लेफ्ट, बट आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी एग्जिस्टेंस ऐसी हुई, एक यूनिक एग्जिस्टेंस है कि वो मुल्क टूटा। तो आई थिंक आइडियोलॉजी का देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्ना साहब हो, जो अर्ली फाउंडर्स हों हमारे, नोबडी टॉक्ड अबाउट एन आइडियोलॉजी। टू नेशन थ्योरी भी उसको आइडियोलॉजी कहना शुरू किया फॉर द फर्स्ट 10 years, ठीक है, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर सके। वॉज अ वेरी सिंपल आइडियोलॉजी, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, वी आर अ डिफरेंट नेशन, ख़त्म, दैट वॉज द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मैं आपको बताऊँ, जो मेरी स्टडी बताती है, मेरी रिसर्च बताती है, 71 के बाद ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन इसलिए आई कि डिबेट जब उठा, सवाल पूछे इस पाकिस्तान कहाँ चला, वो तो मुसलमान थे, व्हाई डिड दे ब्रेक अवे। तो 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू आए। एक पॉइंट ऑफ व्यू आया कि यार देखें, वी हैव नॉट ट्रीटेड पाकिस्तान, जैसे फैज़ साहब ने एक चीज़ लिखी थी कि पाकिस्तान, इफ इमेजिन पाकिस्तान एज अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, विद लॉट्स ऑफ लिम्स, ठीक है ना, एक वेस्टर्न है, एक पर्शियन हमारी इन्फ्लुएंस है हमारे उसके अंदर, और दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सेक्टेरियन वगैरह। एंड ही सेड इस्लाम इज़ पार्ट ऑफ अ बॉडी बट इट इज़ नॉट द होल बॉडी। ये एक पॉइंट निकल के आया। दूसरा पॉइंट निकल के ये आया जो ज़्यादा पॉपुलर लगा, बिकॉज वी हैड
seen humiliation in 71. कि problem is that since, और ये लिखा हुआ है हमारे 1972 की debates जो हुई national assembly जो आई, कि we lost East Pakistan because the soldiers didn't know what they were fighting for. What ideology were they fighting for? So that is when they say कि हाँ यार ideology होनी चाहिए. अगर ideology की लड़ाई होते तो फिर हम शायद ईस्ट पाकिस्तान को बचा लेते. तो this sort of discourse was going on, and then that is why you saw what became as Pakistan ideology. Otherwise, no, not countries में कोई ज़रूरी नहीं है. एक nationalism होता चाहिए, एक nationalistic narrative होना चाहिए for nation state, पर ideology ज़रूरी बिल्कुल नहीं है. हेलो, खुला है. नदीम, आप खुद भी तो पॉलिटिकल वो थे, लिबरल पॉलिटिकल स्टूडेंट फ्रॉम ऑनवर्ड्स एज आई हैव नोन यू. यू वर माय जूनियर टू मी इन द यूनी. आप खुद भी थे वही पॉलिटिकल लिबरल, एक्चुअल, जेन्युइन, एंड आई एम एन एडमायरर ऑफ योर कॉलम. I was saying, don't you think in the ideology of Pakistan, एक तो Arabization, you are right, not Islamization. Arabization जो उन्होंने करी, ये जो साइड पार्टीज हैं, जैसे मैं आसिम अख्तर से पूछती हूँ, जो मेरा पिछले इसमें सवाल था वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं था. I was saying if media debate has dropped, then don't you think आपके कॉलम्स, शहजाद के पॉडकास्ट और ये अवामी वर्कर्स पार्टी, लेट्स से आसिम, मैं आसिम से कहती हूँ, why are you not on the thing to influence many which we get maligned as PTI, जो आप columns पे columns लिखते हैं, supporters of PTI, I mean demonizing them. No, there are people who are against the political disposition. You can influence by writing consistently on कि इनको मीन पे लाएं, इनके इंटरव्यूज आए, इनके जियो और इस पर अवामी वर्कर्स पार्टी के, और इन लोगों के भी तो पॉइंट ऑफ व्यू आते ही नहीं. वो कहते हैं हमें एयर टाइम नहीं मिलता है, कॉन्शियसली नहीं मिलता है. डू यू थिंक दैट्स द फैक्ट? एयर टाइम मिलेगा उनको जब वन वाज के जोश मिलिया आबादी को अगर ले आते सरफेस पे और उन्हें ना करते, तो रेवोल्यूशन का मतलब आपके ख्याल में एजुकेशन में जाता अगर उनको डीमोनाइज करके अलग ना किया जाता बनिस्बत इकबाल के ओवरली. देखिए, मैंने तो कहा इवन सर सैयद को नहीं छोड़ा इन्होंने, वो भी डीमोनाइज हो गए. लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो छोटी पार्टीज़ हैं उनको ज़्यादा कवरेज क्यों नहीं मिलता है. जैसे अभी अजहर ने बात किया था, जियो में रेटिंग्स की गेम है, इनकी कोई फॉलोइंग नहीं है. तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि यार आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना है तो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म ढूंढें, उसमें आ जाएं, या अपनी पार्टी को उसके साथ मर्ज कर ले या एक अलायंस कर ले. अब देखें ना, सिंध में लास्ट इलेक्शंस में आपके जो सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, जो सो कॉल्ड सेक्युलर लेफ्ट हैं, वो जाके फ्यूडल लॉर्ड जो बैठे हैं GDA में, उनकी गोद में जाके बैठ गई. तो देखिए, मसला ये इनकी चॉइस का है कि देव ऑलवेज मेड द रॉन्ग चॉइस. ये मेरी रीडिंग है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मैं भी एक लेफ्ट का बहुत बड़ा हिस्सा रहा हूँ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है ना. और मैं उस वक्त से रियलाइज़ किया था हमारी चॉइसेस बहुत रॉन्ग है, रिएक्टिव चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से हमारा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जिससे हम ओवरऑल अपोज करते हैं जिसके नैरेटिव, उनका फ़ायदा हो जाता है. तो अनफॉर्चुनेटली ये बात है. तो या उनको अगर खुश है कि हम छोटे, हमें बस लेफ्टिस्ट कहा जाए और हम नीचे लिख दें लेफ्टिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ ये पार्टी वो पार्टी, फिर लिंक्डइन पे चले जाएं, फिर वहाँ तो हर कोई ठीक है जी. That's it. This concludes our session. Thank you all so much for coming. Nadeem, again, many congratulations on the book, man. Thank you so much. Thank you, everyone. Din